कोरोना वायरस के खिलाफ नवी जंग की हुण तैयारी हो रही है। देश भर के हस्पतालों च अज मॉक ड्रिल हो रही है। सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने मोहाली के हस्पताल का जायजा लिया, दौरा किया, हस्पताल दी तैयारियां का जायजा लिया। पंजाब दे विच हर तरह दी तैयारियां ने। चेतन सिंह जोड़ा माजरा का बयान है, कहा है कि किसी भी तरह के हालात दे नाल नजिठण दे लई असीं तैयार हां। हाले पंजाब दे विच स्थिति काबू हेठ है, हाले पंजाब च कोई पाबंदी नहीं लगेगी, लेकिन उन्होंने सलाह दी है कि जनतक थावां ते लोग मास्क पहनण। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली दे विच हस्पताल दी तैयारियां का जायजा लिया। दो तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। मोहाली दे विच पंजाब दे सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने तैयारियां का जायजा लिया। देश भर दे विच अज हस्पतालां च तैयारियां का जायजा लिया जा रहा है। कोविड नूं लैके हालात अजे काबू दे विच ने, लेकिन स्थिति ना विगड़े तो इस दे लई पहलां तो ही इंतजाम किए जा रहे हैं। हस्पतालां दे विच किन्ने बैड ने, हस्पतालां दे विच ऑक्सीजन नूं लैके की इंतजाम ने, वेंटीलेटर्स का की प्रबंध है, पीपीई किटां किन्नियां मौजूद ने, हस्पताल दे विच स्टाफ की ट्रेनिंग अप टू डेट है या नहीं, ये सारियां चीज़ां दा जायजा लिया जा रहा है। दिल्ली दे विच केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने हस्पतालां च तैयारियां का जायजा लिया है। मोहाली दे विच पंजाब दे सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा दे वल्लों हस्पताल दीयां तैयारियां का जायजा लिया गया है। ते चंडीगढ़ दीयां तस्वीरां दिखा रहे हैं, जिथे चंडीगढ़ दे सेहत सकत्तर यशपाल गर्ग ने सैक्टर 32 के हस्पताल च तैयारियां का जायजा लिया है। सरकार वालों कहा गया कि 27 तरीक नूं सारे देश भर दे विच जिहड़ी मॉक ड्रिल है जिहड़ी ओह कीती जाऊगी कि जिहड़े ऑक्सीजन प्लांट ने ओह देखे जाणगे, बाकी दा बंदोबस्त जिहड़ा ओह देखा जाऊगा। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੇਵ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚੁਣਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਬੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਵੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਊ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਬੈੱਡਸ ਤੇ ਆਈਸੀਯੂਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ? ਬੈੱਡ ਸਾਡੇ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 3 ਉਹਦੇ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 950 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ। ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਰੀਏ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਐ ਰੋਕ ਲਾ ਦੂੰ ਐ ਰੋਕ ਲਾ ਦੂੰ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਚ ਰੌਲਾ। ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल हम खड़े हैं। वेंटिलेटर से लेके बेड से लेकर ऑक्सीजन से लेकर हर चीज को पूरा ध्यान में रखते हुए उसका वर्किंग, उसका सारा प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, पूरा वर्किंग के बारे में समझना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि तैयारियां पूरी हैं, आज मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है, वेंटिलेटर्स की, बेड्स की बात करें तो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से? ये हमारा ऐसा है कि हमारे डेडिकेटेड वार्ड्स हैं
हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोविड के लिए, क्योंकि कोविड का पेशेंट नॉर्मल आईसीयू में तो रखा नहीं जा सकता, तो हमने कुछ एरियाज को डिफाइन कर दिया है कि इस एरियाज में कोविड के पेशेंट ही रखेंगे। जहां तक वेंटिलेटर का सवाल है, हमारे पास राउंड द क्लॉक इंजीनियर्स हैं कि अगर कोई भी माइनर से मेजर डिफेक्ट भी आएगा तो इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है। और मोर देन 95 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली कोविड को मरीजों की देखभाल के लिए रखे हुए हैं। और जहां जहां भी आईसीयू है वहां पर राउंड द क्लॉक 24 आवर स्टाफ है हमारे पास, जिसको कि हम 3 शिफ्टों में चलाते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट के टाइम पे। एक एक मेडिसिन स्टॉक में है, लेबल्ड है और सब मेडिसिन का बना के रखा हुआ है एंड डेली वो स्टॉक चेक होता है। अगर कहीं भी हमें लगे कि कुछ स्टॉक गिर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो स्टॉक जो हमें रेप्लेनिश कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह को लेकर, हाँ जी, हमारे जहाँ ऐसा है जी कि जो हमारा ये सिस्टम है, क्योंकि कोविड एक बीमारी ऐसी है जो ज्यादातर चेस्ट को इन्वॉल्व करती है, तो 3 मेजर डिपार्टमेंट हैं जो इसको देखते हैं, मेडिसिन का डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट और पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो इनके जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एक 2 तरह के कैटेगरी डॉक्टर्स के होते हैं, एक सीनियर रेजिडेंट होते हैं, एक जूनियर रेजिडेंट। सीनियर रेजिडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने एमडी किया होता है, जूनियर रेजिडेंट जो एमडी कर रहे होते हैं। तो इन सबकी ऑलरेडी ही जो इनके सब्जेक्ट में ही ट्रेनिंग है वेंटिलेटर्स की होती है। तो यही 3 डिपार्टमेंट है जो वेंटिलेटर्स को की देखभाल करते हैं, उनको चलाते हैं और इनको नॉलेज है कि किस मोड पे कैसे वेंटिलेटर को मरीज के साथ लगाना है और उसको कैसे चलाना है। सर इसमें क्योंकि ऑक्सीजन या बेड्स की भी अवेलेबिलिटी जो है वो उसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि हॉस्पिटल में जो जीएमसीएच में जितने भी बेड्स हैं सबके ऊपर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स है, लिक्विड ऑक्सीजन है, पीएसए प्लांट्स हैं। और हमारे पास कभी ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन डाउन हो गई या कुछ हो, बैकअप के लिए हमारे पास सिलेंडर्स हैं हमारे, क्योंकि वेंटिलेटर्स ने चलना ही प्राइमरीली ऑक्सीजन के ऊपर होता है, तो हमारे को राउंड द क्लॉक 24 आवर फुल प्रेशर के साथ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि पूरा जो अरेंजमेंट्स है वेंटिलेटर्स के साथ साथ जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन को जो प्लांट्स को लेकर पूरी तरह से, हालांकि मैम भी हैं, मैम किस तरह से आपकी तैयारियां हैं, पूरी किट वगैरह पहन के जो है वो काम करते हैं, क्योंकि जो दौर हमने देखा उस टाइम में उस तरह की चीजें दोबारा ना हो, उसको लेकर तैयारी। सर हमारी पहले भी पूरी तैयारी थी, आते ही हमारे पास डॉपिंग एंड सारा सामान होता था पहले दिन से। हमें मास्क, कैप और सारी पीटी किट प्रॉपर मिलती रही है। ऑक्सीजन के हमारे अलग से सुपरवाइजर सर हमारे ही होते थे और हमारी ड्यूटी होती थी कि हम डेली सिलेंडर चेक करें और मंगवाएं। प्लस वेंटिलेटर के जो एसेसरीज है वो हमें थोक के भाव मिला, कोई हमें कमी नहीं आने दी। हम आधी रात को भी डॉक्टर पलटा को, इवन कि हम डॉक्टर सुधीर और मैम के साथ भी डायरेक्ट हमें कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम मिलकर बात कर लेते, तो हमारा उसी समय हल हो जाता समस्या का।